afternoon, children. Children, in last class we have done exercise 9.1 algebraic expressions. Okay. Today we shall study about the product of the polynomials. In last class we had learned about addition and subtraction of polynomials. Today we will going to solve multiplication of polynomial. First question, 4 and 7p. Again I am repeating, in multiplication of numeral with numeral and variable with variable. यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह कि हम p से p को, x से x को, q से q को करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में सारे जो होते हैं all are uniforms and we can multiply all variable with other variables and all numerals with other numerals. Just for example, we have to find out the product of 4 and 7p. This is equal to 4 into 7p and this is 4 into 7p and this is equal to 28p. And this is our answer. In question third, minus 4p and 7p cube. Minus 4p into 7p cube. And this is equal to minus 4 into 7 p into p into q. And this is minus 28 p square q. Very easy, children. Okay, Prinjal. This is first question. This is third question. Similarly, you have solved fourth and fifth. Now we have come to question number second. Find the areas of rectangle with the following pair of monomials as their length and breadth respectively. अब जैसे सेकेंड में पहला PQ मिला हुआ है, this means L is equal to P and breadth is equal to Q. We know that area is equal to L into B and this is equal to P into Q and this is PQ answer. It's very simple. And now we have come third. 20x square 5y square. L is equal to 20x square and B is equal to 5y square. Again, area is equal to L into B and this is 20x square into 5y square and this is 20 into 5 x square y square. 25 the 100 x square y square. Clear, children? Anyone have any problem? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? Okay, no problem. लास्ट बताना है. ये कौन है? भाविक. लास्ट बताना है बेटा क्या? गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स. ओके. Last one is 3mn and 4np. Okay.
N is equal to 3mn and B is equal to 4np. Again area is equal to L into B and this is 3mn multiplied by 4np. Now numeral is one bracket and variable in one bracket, m into n into n into p, and this is 12m n square p. Okay, right Prinjal, 12m n square p. ओके, वहां भी समझ में आ गया आपको? Okay, now we have come to question number 3rd. देखो थर्ड के लिए मैं एक रो बता रही हूँ आपको. थर्ड कर लिया सब बच्चों ने इस प्रॉब्लम को? अब देखो ये इधर बेटा ये रो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6. Okay, minus 9 x square y square 7 x square y minus 4xy 3x square minus 5y 2x, and this is the first monomial. This is the first monomial. Now 2x minus 5y 3x square minus 4xy 7x square y minus 9x square y, x square y square. Children, this is your table which is given in the book. And this is the second monomial. This one is second monomial. And we have to complete the table of products. We have to complete the table of products. It's very easy. First, we have multiplied 2x with 2x. And this is 4x square. Now we have multiplied 2x with minus 5y. And this is minus tan xy. Now this multiplied by this 6x cube. Now this multiplied by this minus 8x square y, and again we have multiplied 14x cube y, and last one minus 18x cube y square. Again this multiplied by this minus 10 xy, and similarly you have proceed. This one is 6x cube, this one is minus 8 x square y, now 14 x cube y, and last one minus 18 x cube y square. आप बड़े थोड़े कॉलम बनाना और कॉलम बना के मल्टीप्लाई करके लिख लेना. इसे कंप्लीट करना है बच्चों, कर लोगे ना? फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? Children, any problem?
मनीष रिपीट क्वेश्चन 2 बेटा. क्वेश्चन 2 में हमें एरिया फाइंड करना है एंड वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. यू हैव सीन इन द बुक. Find the area of rectangle and we know that area of rectangle equal to length into breadth. And here in bracket, first one is length and second one is breadth. Suppose first question in bracket P and Q, so L is equal to P and breadth is equal to Q. We know that area is equal to L into B and so B multiply P by Q and the answer is PQ. Always remember, multiply numeral by numeral, variable by variable. If variable are more than one, then you can use this identity, x ka power 1 multiplied by x ka power 2. This means power is taken as sum of the variable and the answer is x ka power 3. क्यों बेटा विशाखा करना है ना, मैं यहाँ बोर्ड पे बनाई ना बेटा, आप ही कॉपी में करके बनाओगे, है ना. बुक गंदी हो जाती है, कॉपी में आप बना लेना जैसे मैं यहाँ पर बनाई हूँ और कॉपी में बना लेना. आप थोड़ी बड़ी सी इसकी लेना. ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं, स्क्वायर बड़े लेना, तो बड़े स्क्वायर में आराम से डिजिट अच्छे से अंदर आ जाएगा. ओके, क्लियर चिल्ड्रेन. नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन 4. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. In bracket we have given three quantities, 5a, 3a square, 7a, 4. We have considered this as length, breadth and height and we have to find out the volume and we know that volume is equal to length into breadth into height. So we have find the product of 5a, 3a square and 7a, 4 and the answer is the product of these three. First, third, fourth, first. 5a, 3a square, 7a, 4. Okay. Here a is equal to 5a, breadth is equal to 3a square and height is equal to 7a, 4. We know that volume equal to L into B into H and this is 5a, 3a square, 7a, 4. Now 5 into a into a square into a 4. 7 3s are 21 and 21 5 105 or 5 3s are 15 and 15 7s are 105. Now 4 plus 2 6 or 1 7 and this is a7. Always remember, in multiplication power is added. So here a1 plus 2 plus 4 and this is a7. Good Prinzal, very good. Isika good. Formula is L into B into H. Yes, Pal, good beta. Now you have done question number third. And reply me the answer in chat box. Yes, Priyanshu, okay. You have also right. Yes, Pal is also right. Priyanshu is also right. Priyanshi is in class 10th, Priyanshu. So I always remembered her. Okay, Tanisha Diven, you have to done question third and give me answer in chat box.
फास्ट चिल्ड्रेन। हिमांशु, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड बना के आंसर बताना है मुझे। 100 और a की पावर 7 तो ऑलरेडी मैं बोर्ड पे बना चुकी हूँ। बच्चों आपको फोर्थ का थर्ड बनाना है और मुझे बताना है आंसर क्या आ रहा है। गुड यशपाल। प्रियांशु गुड। वेरी इजी ना चिल्ड्रेन। xy इंटू 2x² y इंटू 2xy², न्यूमरल इन वन ब्रैकेट and variable in one bracket. And now you have to see 2 into 2 4, x का power 4 and y का power 4, and this is the answer. कर लोगे बच्चों? फिफ्थ भी या कोई बताना है तो बोलो। फिफ्थ में भी प्रोडक्ट निकालना है, कोई बताओ फिफ्थ का, बताओ या कर लोगे आप सारे? आगे मैं स्टार्ट करूं? बच्चों रिस्पॉन्स करो। फोर्थ और फिफ्थ भी सेम टू सेम है बेटा, बना लोगे ना आप लोग? गुड दिवेन। यशपाल गुड। हाँ चलो बच्चों, अब ना बेटा देखो, हमने कल पढ़ा था मोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब जो है हम नेक्स्ट जो सीखेंगे वो सीखेंगे ये हमारा जो है मोनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाय पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे पहला तो मल्टीप्लाई का जो पहला जो होगा बेटा पोलिनोमियल, वो तो मोनोमियल होगा, और दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है ना। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम इसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 9, अब हमारा एक्सरसाइज 9.3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 9.3 हम करेंगे। अब देखो 9.3, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 4p को q प्लस r। अब देखो ये क्या है, ये एक मोनोमियल है और ये क्या है, ये एक बाइनोमियल है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम मोनोमियल का प्रोडक्ट बाइनोमियल से सीखेंगे, और बहुत इजी है। जैसे ब्रैकेट वाले सिंपल मल्टीप्लाई करते थे वही काम हम यहाँ भी करेंगे। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सेम वेरिएबल में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है बच्चों, बेटा सारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। जैसे PQR का मल्टीप्लाई है तो आंसर में PQR आ गया। अगर डबल ट्रिपल बार आ रहा है बेटा तो आप पावर को ऐड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में रूल है कि मल्टीप्लाई में पावर जो है वो हमेशा आपस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब देखो ये मल्टीप्लाई है 4p इंटू q प्लस r, ठीक है ना। अब ये वही सिस्टम है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4p इंटू q, साइन बीच की प्लस की आ जाएगी, और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 4p इंटू r। अब ये हो गया 4pq प्लस 4pr, और यही हमारा आंसर हो गया। इजी है, आ रहा है ना सबको समझ में? बहुत इजी है बच्चों। इसी तरह से हमें सारे को मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉमन नहीं लेना है, बिना कॉमन लिए हुए सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब मैं जैसे देखो आपको थर्ड बता रही हूँ, सेकंड तो सेम है, जैसे मैं अभी ये फर्स्ट बताई, थर्ड बता रही हूँ मैं। क्या दिख रहा है आपको? थर्ड। अब देखो थर्ड जो है हमारा, थर्ड में है a प्लस बी
और इसे मल्टीप्लाई करना है 7a² b²। अब देखो यही बात हो गई, फिर पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू 7a² b², बीच में प्लस की साइन है, फिर b इंटू 7a² b²। अब हमेशा न्यूमरल आगे आएगा, ये पावर 1 और ये 2 मिलकर हो गया a3 b² प्लस 7a² b3 एंड दिस इज आर आंसर। वेरी इजी बच्चों। सेकंड हो गया ये हमारा, थर्ड था, फोर्थ भी इसी तरह से है और इसी तरह से हमारा फिफ्थ भी है। बताना फिफ्थ का आंसर क्या होगा चिल्ड्रन? गिव मी रिप्लाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट? फर्स्ट सबसे पहले कौन रिप्लाई दे रहा है? फिफ्थ का आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? 0। वेरी गुड, क्योंकि 0 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? 0 होता है ना। इसी का कोमल, वेरी गुड बेटा। आप क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे PQ इंटू 0 प्लस QR इंटू 0 प्लस RP इंटू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ। क्लियर? अब आ जाओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हो जाए तो मुझे बता देना। Done children? Okay, सानिया, कोमल, वेरी गुड बेटा। हिमांशु, प्रियांशु, दिवेन, गुड। Second is also in the tabular form, so we have to do question first. First expression is A and it is multiplied by the second expression which is B plus C plus D. Okay, now the product A into B plus A into C plus A into D and this is AB plus AC plus AD and this is the answer. कर लोगे सारे या कोई और बताना है? इसमें बताओ, सेकंड का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई और बताना है? बताओ बच्चों। किसी को किसी में प्रॉब्लम है तो बोलो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी बच्चे को नहीं आ रहा है? मनीष थर्ड, ओके। और थर्ड वन इज P multiplied by 6p² minus 7p and plus 5. Now P into 6p² minus 7p plus 5 and this is equal to P into 6p² minus P 7p plus P into 5. Now this is equal to 6p³ minus 7p² plus 5p and this is the answer. Okay. बहुत ही इजी सा चैप्टर है बच्चों, फटाफट आप लोगों से हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन थर्ड बताऊंगी। अभी इसमें 2 एक्सरसाइज और हैं। आगे हम लोगों को आइडेंटिटी सीखनी है बच्चों। अभी तो ये बहुत ही इजी सा पार्ट है ना। डन चिल्ड्रन? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। अगेन वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड दिस इज A² into 2a का पावर 22 and 4a का पावर 26. 4a का पावर 26. Okay children, now this is the product, so
दिस इक्वल टू, पहले न्यूमरल वाले को एक जगह कर लेते हैं, 2 इंटू 4 और हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं ए स्क्वायर इंटू ए का पावर 22 इंटू ए का पावर 26, दिस इज 8 ए का पावर 2 प्लस 22 प्लस 26, दिस इज 8 ए 6 और 2 8, 8 and 2 10, carry 1 2 2 4 और 1 5, and this is the answer. गुड प्रियांशु। हाँ कोमल रिपीट कर रही हूँ, देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ए स्क्वायर इंटू 2a का पावर 22 एंड 4a का पावर 26। हमेशा न्यूमरल को एक जगह कर लूं, तो मैंने पहले न्यूमरल को एक ब्रैकेट में कर ली 2 इंटू 4 और सारे जो वेरिएबल थे उनको एक में कर ली, ए स्क्वायर A22 और A26, ठीक है ना। 4 2 8। ऑलवेज याद रखो बेटा कि जो भी पावर होते हैं ना ये जुड़ते हैं, आपस में ऐड होते हैं, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल का रूल है ये। तो मल्टीप्लाई थे तो सारे पावर आपस में ऐड हो गए, 2 प्लस 22 प्लस 26 और ये सारे मिलके 50 होते हैं बस, तो ए का पावर 50 और ये हमारा आंसर हो गया। ओके गुड। अब आप लोग बताओ सेकंड थर्ड में से कौन सा बता दूं। फोर्थ तो इजी है, देखो फोर्थ का तो आंसर ऐसे ही निकाल लेंगे, 4 और 3 7 to 9 and 10, x का पावर 8। आंसर जो फोर्थ का है वो x का पावर 8 है। अब मुझे बताओ सेकंड और थर्ड में से कौन सा बताऊं। थर्ड, ओके। This is the third question of third. Minus 10 upon 3 p q का पावर 3 और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय p का पावर 3 एंड q। अगेन द सेम प्रोसेस, न्यूमरल इन वन ब्रैकेट एंड वेरिएबल इन वन ब्रैकेट। आप चाहो तो एक वेरिएबल को एक ब्रैकेट में, एक वेरिएबल को एक ब्रैकेट में कर दो ताकि आपको सॉल्यूशन निकालने में इजी हो जाए। अब ये देखो 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10 और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6। नाउ दिस बिकम्स -4। Here again power is added, so this is p का पावर 4 and here q का पावर 4 and the answer is -4 p का पावर 4 and q का पावर 4 and this is the answer. ओके चिल्ड्रन, सेकंड भी इसी तरह से बन जाएगा। आ गया समझ में सबको। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको फोर्थ बता रही हूँ, ठीक है ना। फोर्थ सिंप्लीफाई है, ओके, और वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3x 4x minus 5 plus 3. Firstly, we have to simplify this problem and then find the values for x is equal to 3 and x is equal to half. So firstly, we have to simplify 3x into 4x minus 3x into 5. यहाँ देखो नेगेटिव साइन है तो बीच में भी नेगेटिव आ गया, और अगर पॉजिटिव साइन होता है तो बीच में हम पॉजिटिव लेते हैं, एंड प्लस 3.
अब देखो फिर वही 3 इंटू 4 एक जगह और x इंटू एक्स एक जगह। जब आपको आ जाए ना बच्चों तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। ये तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, वरना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 15x plus 3. This is the simplification. Okay. Now we have to find out the values of first x is equal to 3. Our equation is 12x square minus 15x plus 3. So by putting the value of 3, x is equal to 3 square minus 15 into 3 plus 3. दिस मीन्स जहां जहां पे x है वहां वहां पे वैल्यू क्या रखना है 3। जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमें वैल्यू 3 रखनी है। सिंगल x है तो 3, x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 9 45 प्लस 3। 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। देखो ऐड वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे तो 8 और 3 11 111 माइनस 45। अब 11 में से 5 गया 6 10 में से 4 गया 6 और ये 0 66 आंसर। क्लियर चिल्ड्रन? वापस समझाऊं? एक और है बेटा, इसमें सेकेंड पार्ट भी है और x इज इक्वल टू हाफ। ये आ गया बच्चों सबको समझ में? भाविक मैं दूसरा वाला बता रही हूँ बेटा, वैल्यू रख के फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये एक पार्ट था, एक पार्ट और है इसका, है ना? ये कर लो बच्चों तो बताना। ये तो सेम रहेगा बच्चों दोनों केस में। फर्स्ट के लिए भी यही आंसर होगा हमारा इक्वेशन और सेकंड के लिए भी हमारा यही होगा। ये कर लो तो बताना बच्चों, फिर मैं आगे आपको इसका एक पार्ट और है वो भी समझाऊंगी। देखो ये इक्वेशन को मैं रखती हूँ और सेकंड जो केस है बच्चों, सेकंड केस में x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू हमें मिली हुई है हाफ। x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना? फिर वही 12 x की जगह पे हाफ और पावर में 2 और माइनस 12 और फिर एक बार x है तो हाफ और प्लस 3। मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम हाफ रख देंगे। जो पहले भाभी पूछ रहे थे आप मुझसे, हमारी वैल्यू 3 थी। जहां जहां पे x था वहां वहां पर हम 3 रख रहे थे। 12 अब ये 2 है स्क्वायर है तो 1/4 माइनस 12/2 प्लस 3। अब ये देखो 4 से कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 3 माइनस 15/2 प्लस 3। अब देखो इन दोनों के नीचे 1 है चिल्ड्रन। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। 2 क्या हो गया 6 माइनस 15 और प्लस 6। या ये यही कट रहा था बच्चों, ये करने की जरूरत नहीं थी। देखो डायरेक्ट ही बना लो, यही आ जाएगा। नहीं एक तो प्लस का एक माइनस का है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो 6, अगर ये प्लस माइनस होता ना तो यही कैंसिल कर लेते। चाहो तो 3 3 6 भी एक साथ कर सकते हो। 6 माइनस 15 और प्लस 6 12 माइनस 15/2 and this is equal to minus 3/2। दिस इज ओनली सिंपल सिंप्लीफिकेशन। आप जो सिंप्लीफाई करते हो ना वही है। आप चाहो तो पहले भी 3 + 3 6 कर सकते हो और 6 करने के बाद 6 माइनस 15/2 सो 12 माइनस 15/2 जैसे भी मर्जी हो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ का सेकंड बना लोगे चिल्ड्रन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बी फोर्थ का बी बना लोगे, ये फोर्थ का ए था। फोर्थ का बी बना लोगे ना बच्चों? हाँ अब चलो मैं आपको फिफ्थ बताती हूँ। फिफ्थ में अब दोनों है, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। पहले फिफ्थ का ए बनाते हैं, है? देखो फिफ्थ का ए
ए में ऐड करना है, किसको ऐड करना है बच्चों? पी माइनस क्यू, फिर है क्यू माइनस आर, और है आर और आर माइनस पी। देखो ये जो तीनों है ना, इनको मुझे ऐड करना है। अब देखो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो पहला हमारा टर्म है क्या हो गया? पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। डायरेक्टली क्यों बच्चों? पी स्क्वायर एंड पी क्यू। सेकेंड वाला क्यू माइनस आर, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। Again this multiplied by this and this multiplied by this. And last one r minus p. This is also equal to r square minus rp. Now we have to add all these three. Now p square minus pq plus q square minus qr plus आर स्क्वायर माइनस आर पी। प्लस की साइन है, बीच में कोई चेंजेस नहीं आता। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब इसको अरेंज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर वाले पहले लिख लिए, फिर वो अल्फाबेटिकली पी क्यू QR and RP, and this is the answer. ठीक है ना बच्चों, बहुत इजी है ना? इसको कुछ नहीं की हूं मैं, जैसे पहले स्क्वायर वाले को ले ली हूँ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और फिर अल्फाबेटिकली ली हूँ, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर और आर के बाद पी। ओके देखो बेटा, ये कोमल मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम है इसमें मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले जो हमें जो ये 3 जो 1 2 3 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिले हैं, ये मल्टीप्लाई में थे। तो पहले मैं मल्टीप्लाई की, पी से पी को मल्टीप्लाई की तो पी स्क्वायर, पी से क्यू को मल्टीप्लाई की बच्चों तो पी क्यू, फिर क्यू से क्यू को मल्टीप्लाई की तो क्यू स्क्वायर, और क्यू से क्यू आर, फिर आर से आर स्क्वायर, और फिर आर पी। अब क्या करना था? तीनों को प्लस करना था, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। कुछ भी नहीं की बच्चों, प्लस था, ब्रैकेट हटा दी, सबका ब्रैकेट हटा दी, तो ये बस ब्रैकेट हटाने के बाद जो जैसे था वैसे लिख दी। माइनस तो था नहीं, इसलिए सबको ब्रैकेट में लिख दी। लिखने के बाद बच्चों अरेंज कर दी, पहले स्क्वायर वाले को लिखी, और उसके बाद जैसे अल्फाबेट में आता है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, उसी को मैंने यहाँ पर फॉलो किया, ठीक है ना? जैसे पहले P, फिर Q, फिर R, फिर इसी तरह से PQ, फिर QR और फिर RP, और ये हमारा आंसर हो गया। कर लोगे आप लोग बच्चों? सेम है, 5 में भी ABCD सब सेम है। तो आज आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट एक्सरसाइज 9.2 एंड 9.3। और अगर कोई माइनस वाला नहीं बने बच्चों तो मुझसे आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके चिल्ड्रन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वापस कुछ पूछना है?